أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال موعدكم یوم الزینہ، یہ آیت 59 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے وعدے کا دن ہوگا جشن کا دن، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ لوگ جمع کر لیے جائیں گے دن چڑھے۔ یہاں تک وضاحت ہو چکی۔ اگلی آیت سورہ طٰہٰ کی آیت 60 ہے۔ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ، تو اب فرعون نے رخ پھیرا۔ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ، تو اب فرعون نے رخ پھیرا، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ طے ہو گیا اور ایک وقت مقررہ متعین کر لیا گیا تو فرعون نے اپنی پوری توجہ اس کی تیاری کرنے پر لگا دی۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ طے ہو گیا اور اس کے لیے ایک دن رکھ دیا گیا تو فرعون نے اپنی ساری توجہ، اپنی ساری کوشش اس مقابلے کی تیاری پر لگا دی۔ فرعون اور اس کے درباریوں کی نگاہ میں اس مقابلے کی اہمیت اس لیے زیادہ تھی کیونکہ وہ اس فیصلے پر اپنی قسمت کا فیصلہ معلق سمجھ رہے تھے۔ جی ہاں، تمام ملک میں آدمی اور نمائندے دوڑا دیے گئے کہ جہاں جہاں کوئی ماہر جادوگر موجود ہو وہاں سے اسے لے آئیں۔ اس طرح عوام کو بھی جمع کرنے کی خاص طور پر ترغیب دی گئی اور ایک مہم چلائی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو سکیں اور اپنی آنکھوں سے جادو کے کمالات دیکھ کر موسیٰ کے عصا کے رعب سے محفوظ رہ سکیں۔ کھلم کھلا یہ بات کہی جانے لگی کہ ہمارے دین کا انحصار اب بس جادوگروں کے کرتب پر ہے، وہ جیتے تو ہمارا دین بچے گا ورنہ موسیٰ کا دین چھائے گا اور غالب ہو جائے گا۔ تو اس کام کے لیے فرعون اور اس کے درباریوں کی نگاہ میں یہ مقابلہ اس لیے اہم تھا کیونکہ وہ اس فیصلے پر اپنی قسمت کا فیصلہ معلق سمجھ رہے تھے۔ اسی وجہ سے تمام ملک کے اندر اپنے نمائندے اور کارندے دوڑا دیے گئے کہ جہاں جہاں بھی ماہر جادوگر موجود ہوں اسے لے آئیں۔ اسی طرح سے عوام کو بھی اس موقع پر جمع کرنے کی خاص طور پر ترغیب دی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو سکیں اور اپنی آنکھوں سے جادوگروں کے کمالات اور کرتب دیکھ سکیں اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا رعب ان کے دلوں سے نکل جائے۔ کھلم کھلا یہ بات کہی جانے لگی تھی کہ آج ہمارے دین کا انحصار جادوگروں کے کرتب پر ہے، وہ جیتتے ہیں تو ہمارا دین بچے گا ورنہ موسیٰ کا دین غالب اور چھا جائے گا۔ تفسیر عثمانی نے اس آیت کے تحت یہ بات نقل کی ہے، یعنی یہ طے کر کے فرعون مجلس سے اٹھ گیا۔ جب وعدے کے لیے ایک دن مقرر ہو گیا تو یہ طے کر کے فرعون مجلس سے اٹھ گیا اور جادوگروں کو جمع کرنے اور اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ہر قسم کی تدبیریں اور داؤ گھات لگانے لگا اور آخرکار مکمل تیاری کے بعد پوری طاقت اور قوت کے ساتھ وقت معینہ پر مقابلے کے لیے میدان میں حاضر ہو گیا۔ ساحروں اور جادوگروں کی بڑی فوج اس کے ساتھ تھی۔ انعام اور اکرام کے بڑے بڑے وعدے کیے جا رہے تھے ان سے اور ہر طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کی بس فکر ہو رہی تھی۔ اس آیت 60 کا اگلا فقرہ جو ہے وہ یہی اشارہ کر رہا ہے۔ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، یہ اس آیت 60 کا اگلا فقرہ ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کر لیے۔ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ،
चुनाचे उसने यानी फिरौन ने अपने सारे हथकंडे जमा कर लिए। आगे चलते हैं आयत 61 की तरफ। क़ाल लहुम मूसा वैलकुम ला तफ्तरू अलल्लाहि कज़िबन फयुस्हितकुम बिअज़ाब। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी बदबख्ती, अल्लाह पर झूठ मत गढ़ो, वो तुम्हें गारत कर देगा किसी अजाब के जरिए से। ये मूसा अलैहिस्सलाम का कौल है जो उन्होंने खिताब करके कहा। क़ाल लहुम मूसा वैलकुम ला तफ्तरू अलल्लाहि कज़िबन फयुस्हितकुम बिअज़ाब। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी बदबख्ती, अल्लाह पर इफ्तिरा मत करो, अल्लाह पर झूठ मत गढ़ो कि वो तुम्हें गारत कर दे किसी अजाब के जरिए। मतलब ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी हुज्जत के तौर पर, आखिरी तौर पर उनको समझाने के लिए उन्हें खबरदार किया कि देखो तुम लोग अल्लाह पर झूठ ना बांधो, और जो कुछ मैं पेश कर रहा हूं वो जादू नहीं है, ये तो मेरे अल्लाह का अता किया हुआ एक मोजिजा और निशानी है जिसे देकर अल्लाह ने मुझे भेजा है, ये जादू नहीं है, इसलिए तुम अल्लाह पर झूठ न बांधो। आगे इसी आयत 61 का आखिर है, वक़द ख़ाबा मन इफ्तरा, और यकीनन वो नाकाम हुआ जिसने अल्लाह पर इफ्तिरा किया, यानी अल्लाह पर झूठ बांधा। वक़द ख़ाबा मन इफ्तरा के अल्फाज हैं, और यकीनन वो नाकाम हुआ, नामुराद हुआ जिसने अल्लाह पर इफ्तिरा किया, झूठ बांधा। अगली आयत 62 है। देखिए अब ये वाक़या हुआ, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी तौर पर समझाने के लिए, उन पर हुज्जत को कायम करने के लिए उन्हें आखिरी मौका दिया और समझाया। फिर क्या हुआ उसके बाद, अगली आयत 62 में है, फतनाज़अू अमरहुम बैनहुम व असर्रुन नजवा। तो वो यानी जादूगर आपस में बाहम झगड़ पड़े अपने मामले में, तो वो बाहम झगड़ पड़े अपने मामले में और फिर लगे चुपके चुपके मशवरा करने। वासरुन नजवा, नजवा के मतलब होता है सरगोशी, चुपके चुपके सरगोशी करने लगे, उसी का हम तर्जमा कर रहे हैं मशवरे से, अपने मुआवले में, और फिर लगे चुपके चुपके मशवरा करने, सरगोशी करने। मतलब ये है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार जादूगरों को खिताब किया तो वो सहम गए और थोड़ा खौफ उनके ऊपर तारी हुआ, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम जो बोल रहे थे, जो समझा रहे थे, नबूवत की जुबान से समझा रहे थे, उनके पास नबूवत की सच्चाई भी थी और आपकी शख्सियत की खुदादाद सलाहियत भी थी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने खास उनकी शख्सियत के अंदर एक रौब और एक जलाल रखा था। चुनाचे जादूगर ये सब कुछ बर्दाश्त ना कर सके, आपकी तकरीर और वाज सुनते ही उनसे मुकाबले का जो मुआमला था, इनके दरमियान तनाज़ो की शक्ल और एक झगड़े की सी शक्ल इख्तियार कर गया, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे को कायल करने के लिए सरगोशी करने लगे। तो जो मुकाबले का मामला था उनके दरमियान तनाज़ो की शक्ल इख्तियार कर गया, चुनाचे वो एक दूसरे को कायल करने के लिए आपस में सरगोशियों में मसरूफ हो गए। इस आयत का एक मफहूम तो ये है। दूसरा मफहूम ये भी हो सकता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तकरीर से फिरऔन के दरबारियों में बाहम इख्तिलाफ पैदा हो गया और वो आपस में चुपके चुपके सरगोशियां करने लगे कि ये मुकाबला ना कराया जाए। लेकिन बिल आखिर तमाम लोगों की राय के इत्तिफाक से सब लोग इस नतीजे पर पहुंचने में कामयाब हो गए और वो मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। अगली आयत 63 में है, क़ालू इन हाज़ानी लसाहिरानी युरीदानी अन युखरिजाकुम मिन अर्ज़िकुम बिसिहरिहिमा व यज़हबा बितरीक़तिकुमुल मुसला।
पूरी आयत का तर्जमा हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों जादूगर ही हैं जो चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से निकाल बाहर करें अपने जादू के जोर से और तुम्हारी मिसाली तहजीब को बर्बाद कर दें। यानी सब लोगों ने एक राय पर मुत्तफिक होकर ये फैसला किया और ये बात कही कि ये दोनों जादूगर ही हैं जो चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से निकाल बाहर करें अपने जादू के जोर से और तुम्हारी मिसाली तहजीब को बर्बाद कर दें। देखिए आयत में मुसला का लफ्ज लाया गया है। मुसला ये मुअन्नस है अमसल की, जिसके माना आते हैं सबसे ज्यादा मिसाली। ये आयत 63 इसलिए बड़ी अहम है क्योंकि आज के लोगों के ख्यालात से ये मेल खाती है, क्योंकि इसमें हक के मुकाबले में बातिल जहन का आपसी इत्तिफाक है। इस आयत में हक के मुकाबले में बातिल जहन का आपसी इत्तिफाक है। मतलब ये है कि जो दलील उस वक्त फिरऔन और उसके दरबारियों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ सूझी थी और जो तदबीर वो इख्तियार कर रहे थे, आज भी शैतानी ताकतें अहले इस्लाम के खिलाफ इसी दलील को इस्तेमाल कर रहे हैं। इबलीसी फौज और इबलीसी सोच ने आज भी पूरी दुनिया में यही शोर बर्पा कर रखा है कि ये हमारी मिसाली तहजीब के लिए खतरा है। बहरहाल ये वही बात है और वही सोच और फिक्र है जो इससे पहले फिरऔन और उनके दरबारियों ने मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ रची थी। अगली आयत 64 है, फ़अजमिउ कैदकुम सुम्मा अतू सफ़ा, चुनाचे तुम जमा करो अपनी सारी तदबीरें, फिर आओ मुकाबले में सफ बांध कर। यानी तुम लोग अपने तमाम वसाइल लाते हुए मूसा के मुकाबले में एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हो जाओ। आगे इसी आयत में है, वक़द अफ़लहल यौमा मन इस्तअला, और आज कामयाब वही रहेगा जो गालिब आएगा। यानी जिसका जादू कामयाब होगा उसी का दीन भी गालिब आएगा। यानी इनके मुकाबले में, मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में मुत्तहिदा महाज पेश करो। अगर इस वक्त तुम्हारे दरमियान में आपस में ही फूट पड़ गई और ऐन मुकाबले के वक्त मजमे आम के सामने ये सरगोशियां होने लगी तो फिर तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी और लोग समझेंगे कि तुम तो खुद ही हक पर होने का यकीन नहीं रखते, बल्कि दिलों में चोर लिए हुए मुकाबले पर आए हो। ये बात हुई कि भाई इस वक्त थोड़ा समझदारी से काम लो। अगर तुम्हारे दरमियान ही फूट पड़ गई और ऐन मुकाबले के वक्त मजमे आम के सामने ये सरगोशियां तुम करने लगे तो फिर तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी और लोग समझेंगे, लोगों को ख्याल होगा कि तुम तो खुद अपने हक पर यकीन नहीं रखते, तो फिर तुम कैसे कामयाब हो सकते हो। तो ये आयत 64 थी। आगे चलते हैं आयत 65 की तरफ। क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िया व इम्मा अन नकूना अव्वला मन अलक़ा। अब यहां से मुकाबला शुरू होता है आयत 65 से जादूगरों और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान। क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िया व इम्मा अन नकूना अव्वला मन अलक़ा। जादूगरों ने कहा, ए मूसा, या तो तुम पहले डालो और या फिर हम ही पहले डालने वाले बनते हैं। जादूगरों ने कहा, ए मूसा, या तो तुम पहले डालो या फिर हम ही पहले डालने वाले बनते हैं। अगली आयत 66 है, क़ाला बल अलक़ू। क़ाला की जो ज़मीर है उसका मर्जा फिरऔन मूसा अलैहिस्सलाम है। क़ाला बल अलक़ू, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बल्कि तुम ही डालो। तो इस तरह हजरत मूसा ने जादूगरों को गोया के पहल करने की दावत दी। आगे इसी आयत 66 में है, फ़इज़ा हिबालुहुम व इसियुहुम
युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ, तो अचानक उनकी रस्सियां और लाठियां उनके जादू के असर से उसको ऐसे नजर आने लगी गोया कि वो दौड़ रही हैं। फ़इज़ा हिबालुहुम व इसिय्युहुम युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ, तो अचानक उनकी रस्सियां, यानी ये जो जादूगर अपनी रस्सियां लाए थे और लाठियां, जो लकड़ियां ये लाए थे, उनकी रस्सियां और लाठियां उनके जादू के असर से उसको यानी मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसे नजर आने लगी गोया कि वो दौड़ रही हैं। यहाँ हिबाल और इसी का लफ्ज आया है। हिबाल जमा है हबलुन की, रस्सी के माना आते हैं। सूरह लहब में भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, हबलुम मिम मसद। तो हबल के माना रस्सी के हैं और इसी जमा है असा की, लाठी को कहते हैं। मतलब ये है कि जादूगरों ने मैदान में रस्सियां और लाठियां फेंक दी जो उनके जादू के असर से देखने वालों को दौड़ते हुए सांप की तरह भागती और दौड़ती नजर आने लगी थी। यहाँ कहने का मतलब ये है, तफसीर उस्मानी में भी है ये बात, और ये बात अगली आयत से भी मालूम हो जाएगी कि ये असर सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं हुआ था। यानी इस जादू का असर ऐसा नहीं है कि आम लोगों ही पर हुआ हो, बल्कि खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी सहर और जादू के असर से मुतासिर हो गए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ आंखों ने ही ये महसूस नहीं किया था, बल्कि उनके ख्याल पर भी ये असर पड़ा कि लाठियां और रस्सियां सांप बनकर दौड़ रही हैं। अब ये मोजिजा तो मैं भी दिखा रहा हूं। अगली आयत 67 से भी यही समझ आ रहा है। फ़अौजसा फी नफ्सिही खीफतम मूसा, तो मूसा ने अपने जी में कुछ डर महसूस किया। फ़अौजसा फी नफ्सिही, नफ्स का तर्जमा हम कर रहे हैं जी। फ़अौजसा फी नफ्सिही खीफतम मूसा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जी में कुछ डर महसूस किया। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यही बात लाहिक हुई कि जो मोजिज़ा मेरे पास है और जो निशानी मैं अल्लाह की तरफ से लेकर आया हूं, इसी नौइयत की चीज तो जादूगरों ने भी दिखा दी। चुनाचे अब ये सारे तमाशाई खुश होने लगे थे, उनके दिलों के अंदर लड्डू फूटने लगे थे कि मूसा को शिकस्त हुई और वो अजीम शान मिशन, मूसा अलैहिस्सलाम सोच रहे थे कि वो अजीम शान मिशन अल्लाह ने जो मेरे सुपुर्द किया है, अब उसका क्या बनेगा। अगली आयत 68 में है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला खुद कहते हैं, कुल्ना ला तखफ इन्नका अंतल आला। हमने फरमाया, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं, हमने फरमाया कि डरो नहीं, यकीनन तुम ही गालिब रहोगे। कुल्ना ला तखफ इन्नका अंतल आला, हमने फरमाया कि डरो नहीं, यकीनन तुम ही गालिब रहोगे। अगली आयत 69 है, 69-69। वअल्क़ी मा फी यमीनिका तल्क़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू कैदु साहिर। अब तुम जरा फेंको उस असा को जो तुम्हारे दाहिने हाथ में है, ये निगल जाएगा उस सब को जो कुछ उन्होंने बनाया है। जो कुछ उन्होंने बनाया है ये तो बस एक फरेब यानी धोखा है जादूगर का। इन्नमा सनअू कैदु साहिर, बिल्कुल लफ्जी तर्जमा है, जो कुछ उन्होंने बनाया है ये तो बस एक फरेब है जादूगर का। यानी जो कुछ मैदान में सांपों की सूरत में आपको नजर आ रहा है, उसकी हकीकत सिर्फ और सिर्फ नजर का धोखा है। उर्फ आम में इस कैफियत को नजरबंदी कहा जाता है। यानी जादूगर नजर को बंद कर देता है और फिर कुछ का कुछ नजर आता है, तो इसकी कैफियत सिर्फ और सिर्फ जादूगर का धोखा है। उर्फ आम में इसी कैफियत, जादू की इसी कैफियत को नजरबंदी कहा जाता है। और इस आयत 69 का आखिर है, वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, और जादूगर कभी कामयाब नहीं हुआ करते चाहे किसी भी हैसियत से आए।
यानी वो एक शान और शौकत से आए थे, क्योंकि फिरौन और उसके लश्करी सब उनके साथ थे, तो एक शाहाना अंदाज से इनाम और इकराम के उनको वादे किए गए थे, शान और शौकत से आए थे। तो अल्लाह ताला फरमाता है उन्हीं की शानो शौकत को बयान करते हुए, वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, और जादूगर कभी कामयाब नहीं हुआ करते चाहे किसी भी हैसियत से आए। आगे चलते हैं आयत 70 की तरफ। फ़उल्क़िय सहरतु सुज्जदन, देखिए हो गई पसपा, हो गई इनको शिकस्त। फ़उल्क़िय सहरतु सुज्जदन, बस गिरा दिए गए जादूगर सजदे में। फ़उल्क़िय सहरतु सुज्जदन, बस गिरा दिए गए जादूगर सजदे में। यानी जब जादूगरों ने, जो ये जादूगर थे, उन्होंने असाए मूसा का कारनामा देखा तो उन्हें फौरन यकीन हो गया, वो फौरन समझ गए और परख गए कि यकीनन मोजिज़ा है ये उनके फन की चीज नहीं है, क्योंकि जादू तो एक फन था जो वो पेश कर रहे थे। जब उन्होंने असाए मूसा को देखा तो फौरन समझ गए कि भाई ये जादू नहीं है, ये तो यकीनन मोजिज़ा है, उनके फन की चीज हरगिज नहीं है। इसलिए वो इस तरह एक बार ही अचानक सजदे में गिर गए, जैसे किसी ने पकड़ कर और उठाकर उन्हें सजदे में गिरा दिया हो। आगे इसी आयत में है, क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, वो पुकार उठे कि हम ईमान ले आए हारून और मूसा के रब पर। यानी उन्हें फौरन यकीन हो गया कि मूसा वाकई अल्लाह रब्बुल आलमीन के सच्चे पैगंबर हैं, और वो पुकार उठे कि हम इस खुदा को मान गए जिसके पैगंबर होने की हैसियत से मूसा और हारून आए हैं। अगली आयत में भी इस वाक़े से मुताल्लिक और वजाहत है, इंशाअल्लाह इसको बाद में देखेंगे। और अब फिरऔन का रद्द अमल सामने आएगा, क्योंकि उसको शिकस्त फास हुई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इन जादूगरों के मुकाबले में फतह हुई। तो अब उसके बाद ये भी मुसलमान हो गए और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हक्कानियत और सच्चाई को पहचान लिया। तो अब इसके बाद फिरऔन का रद्द अमल आएगा, इंशाअल्लाह उसको बाद में देखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।